Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, you know that in the last class we have discussed about the numerical portion that is related to the Kp, Kc and Kc. Simple Kc, the concentration that is equal to product upon reactant. So students, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर numerical portion solve किया और आज हम करने जा रहे हैं अपना remaining topic of this part 1 equilibrium chapter. So today's topic is types of chemical equilibrium. So types of chemical equilibrium. Types of chemical equilibrium. Today we discuss about this topic. So first equilibrium is homogeneous. And second equilibrium is heterogeneous. What do you mean by homogeneous equilibrium and what do you mean by heterogeneous equilibrium? And second one is heterogeneous equilibrium. Firstly we discuss homogeneous equilibrium. क्या homogeneous equilibrium किसे बोला जाता है? So students, आपको पता होना चाहिए. We will take some example to explain this homogeneous equilibrium. The equilibrium reaction in which all the reactants and the product are in the same phase. ऐसा equilibrium जिसके अंदर reactant side के और product side के जो phase होंगे वो same होंगे. ठीक है, तो the equilibrium homo represent the similar, same. ठीक है, the equilibrium in which the reactant and product side phases are similar, they are called, this type of equilibrium is called homogeneous equilibrium. So example is N2 that present in a gaseous state with the H2 that present in a gaseous state and form the ammonia. This is also present in a gaseous state. So balance this equation. ठीक है, here the reactant side phases are gaseous phases. रिएक्टेंट साइड में जो फेज है वो क्या है? गैसियस फेजेस. और प्रोडक्ट साइड में जो फेज है वो भी कैसा फेज है? गैसियस फेज है. सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट particles and the both are present in a similar phase. So this type of equilibrium is called homogeneous equilibrium. Now we will discuss about heterogeneous equilibrium. Second is heterogeneous equilibrium. Heterogeneous equilibrium. So students, what do you mean by heterogeneous equilibrium? The equilibrium reaction in which the reactant and product side phases are different. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो फेजेस होंगे किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के जो फेजेस होंगे वो डिफरेंट होंगे. दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम. सो एग्जांपल इज, मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख रही हूँ किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की. द फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑफ CO plus CO2 present in a gaseous state, okay, and CaO present in a solid state. CaCO3 is also present in a solid state. So this is the example of the heterogeneous equilibrium. Here the reactant side phase is solid and product side में दोनों phases present हैं, solid भी और gaseous भी. So दोनों साइड में जो फेज हैं वो सिमिलर नहीं है. ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा बच्चों? ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो हम बहुत से एग्जांपल और भी ले सकते हैं इस बात को समझाने के लिए. ठीक है, H2O है, लिक्विड फेज में है, with the reversibility, with the equilibrium, with the gaseous phase also. You know that मैंने इसमें एग्जांपल आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम का ऐसा कुछ एग्जांपल भी दिया था. ये एग्जांपल केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बनता है. तो रिएक्टेंट साइड का जो फेज है वो लिक्विड है और प्रोडक्ट साइड का जो फेज है वो गैसियस है. तो ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है बच्चों हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम. ओके, सो these are the two types that is related to the chemical equilibrium. Okay, so we will discuss about the characteristics of equilibrium constant. तो अब हम डिस्कस करेंगे characteristics. कौन कौन से characters हैं? That is of equilibrium constant. और आपको पता है equilibrium constant क्या है? Kc. For the molar concentration, K represented in the form of a Kc
and for the partial pressure for a gaseous particles, this K represented in the form of a Kp. इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. ओके, इतना मालूम होने के बाद बच्चों अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू द केमिकल इक्विलिब्रियम और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इंक्लूड होती हैं. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल. ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज के, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट have attained their equilibrium state. जब रिएक्टेंट साइड के प्रोडक्ट साइड की जो कंसंट्रेशन होती है उनमें जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अटेन हो जाता है तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एप्लीकेबल होता है. वी नो दैट इक्विलिब्रियम के मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस थी. इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट होता है? क्लोज कंटेनर में एग्जिस्ट होता है. इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का होता है जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बोथ आर प्रेजेंट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बोथ आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट. देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is applicable. So the first characteristics of the equilibrium constant is equilibrium constant जो है वो कब applicable होगा? Only when applicable when the concentration of the reactant and product have attained there. जब reactant side की और product side की concentration क्या attain कर लेगी? equilibrium की condition को attain कर लेगी तब K की वैल्यू को. और K क्या होता है? Product upon रिएक्टेंट तभी. और जो K होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट होता है. ठीक है. एंड हियर द K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. जो K है वो पूरी तरीके से रिएक्टेंट की ओरिजिनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि K है, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो K जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में भी बदलेगा. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी वहां पर होगी. ये नहीं है कि पूरी तरह से जो K है कंप्लीटली ओनली डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. तो ऐसा नहीं होता. जो K होता है सेकेंड एप्लीकेशन इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के ओरिजिनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर बन जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे और उस समय जो K होता है वो लिटिल बिट प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है और रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है. और जो रिएक्टेंट होता है उसकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन पे K डिपेंड नहीं करता है. इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है next characteristics of the equilibrium constant is third characteristic that is belong from the equilibrium constant is equilibrium constant have a जो equilibrium constant है has a definite value for every reaction. हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होंगी. जैसे सपोज रिएक्शन हो रही है H2 प्लस I2 फॉर्म HI या फिर हो रहा है HI की डिकम्पोजिशन हो रही है फॉर्म हो रहा है H2 प्लस I2. तो बहुत सारी नंबर ऑफ रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की. सपोज वी विल टेक दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की या मेरे पास इस तरह की कोई रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की दैट अटेन द इक्विलिब्रियम. सो आप लोगों को बच्चे पता होना चाहिए कोई भी रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की उसका जो K होगा वो K फिक्स होगा. हर रिएक्शन के लिए वो K फिक्स होगा. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ डेफिनाइट वैल्यू फॉर एवरी रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट ए फिक्स कंडीशन ऑफ टेम्परेचर. जो K की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी. ठीक है. सपोज अगर मैंने इसी की बात करी, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है और मैंने आपको बताया ये गैसियस फेज है, सभी के सभी गैसेस फेज. आपको पता है जब हम K लिखते हैं तो K के केस में जब K लिखा जाता है तो वैल्यू क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. और इतना आप लोगों को पता है जो K होता है वो गैसेस पे और एक्वस कंडीशन पे डिपेंड करता है. सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या लिया जाता है? 1 लिया जाता है. तो K क्या है? यहाँ पर HI प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और जो भी कोफिशिएंट होता है वो कहाँ जाता है बच्चों? पावर में जाता है. मैंने आपको बताया था. तो क्या आएगा? H2 और I2. जो K की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एट ए फिक्स कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए जो है वो है 48. और K की कोई यूनिट आपको पता फिक्स नहीं होती और इस केस में तो कोई यूनिट होगी भी नहीं क्योंकि ये भी मोल पर लीटर में, ये भी मोल पर लीटर में और ये मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगा. हियर द K की वैल्यू यहाँ पर K की यूनिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है. तो हर रिएक्शन के लिए K की यूनिट डिफरेंट होती है. ये भी कैरेक्टर्स में आ जाता है इसके. और जो K की वैल्यू होती है हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है. कोई रिएक्शन कॉम्बिनेशन हो सकती है, कोई डिकम्पोजिशन हो सकती है, लेकिन उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना चाहिए. जो K की वैल्यू होती है वो हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है. और मैंने आपको बताया था फॉर गैसेस के लिए आप सारा का सारा की सब गैसेस में अवेलेबल है. तो K लिखने का तरीका आपको पता है. सॉलिड और लिक्विड के लिए आप यूनिटी कंसीडर करते हैं, बाकी आप लिख सकते हैं. ठीक है. इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए. ठीक है.
तो आपने यहाँ लिखा, वैल्यूज आपने लिखी और आपको पता होना चाहिए कि जो भी बैलेंसिंग कोफिशिएंट है वो पावर में जाएगा। इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द के। इस तरह से हम के को क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के की वैल्यू, तो हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज ए डेफिनाइट फोर वैल्यू फॉर एवरी रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू द केमिकल इक्विलिब्रियम। About the fourth characteristics of the chemical equilibrium is for a reversible reaction। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, सपोज हमारे पास आ जाता है फोर्थ करेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने आपको बताया कि किस पे डिपेंड करता है, के की वैल्यू फिक्स होती है, के रिएक्टेंट की ओरिजिनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और के कब अटेंड होगा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो के की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, तो 3 अभी तक करेक्टर्स हमने कर लिए हैं दैट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल के। Fine. Now we will discuss about the fourth characteristics of the chemical equilibrium is for a reversible reaction, the equilibrium constant for a forward reaction is inverse of equilibrium constant for the backward reaction. What do you mean by this? देखिए, अगर कोई रिएक्शन है H2 plus I2, अभी क्या बनाया 2HI, ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया ये गैस फेज में है, गैस फेज में है, गैस फेज में है, और साथ साथ मैं आपको एक और कन्वेंशन के बारे में डिटेल में बता देती हूँ। जो के होता है HI, अगर वो गैसेस फेज में है तो वो कंसीडर किया जाता है अपॉन जो भी कोफिशिएंट होगा वो पावर में जाएगा। इसी तरह से H2 वो भी गैसियस स्टेट में है तो लिया जाएगा, गैस फेज है तो लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर लूं तो ये मेरा थर्ड, जो मेरी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वो क्या एक्सप्लेन कर रही है कि अगर कोई रिएक्शन चाहे वो इस तरह से लिया जाए, क्या चाहे उस रिएक्शन का रिवर्स कर लिया जाए H2 plus I2, तो जो K होगा बच्चों किसके इक्वल होगा, नाउ द K इज इक्वल टू H2, ऑल आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, तो आप गैसियस स्टेट वाले सारे कंसंट्रेशन टर्म्स ले सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो। I2 गैसियस, इसी तरह से HI की पावर 2। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट हियर, विजिबल नहीं हो पाएगा। अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्सिबल स्टेट में लेके चलूं तो रिवर्सिबिलिटी स्टेट में है बेटा 2HI form H2 plus I2, all are in a gaseous phase, so it is example of homogeneous equilibrium. Here how I will हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर बच्चों अगर मैंने क्या रखा है, ये के लूं मैं, तो इसको मैं के डैश राइट कर सकती हूँ क्योंकि ये रिएक्शन दोनों एक दूसरे की बिल्कुल इनवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है। तो इस केस में अगर वैल्यू मेरी क्या थी 48 थी, तो मेरे पास होगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन के डैश। याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या निकलेगी, अगर ये k है तो ये k डैश है, तो अगर मुझे k डैश की वैल्यू निकालनी है तो मैं करूंगी 1 अपॉन के, और 1 अपॉन के क्या था मेरा 1 अपॉन 48। ठीक है, तो इस तरीके से 0.02 करके या मेरी वैल्यू निकल सकती है। इतना आप लोगों को पता हो। थर्ड तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स यही थी कि अगर कोई रिएक्शन हमारी है सिंपल, अगर मैं उसका इनवर्स कर दूं, जो उसकी जो कांस्टेंट की वैल्यूज होंगी वो भी इनवर्स हो जाएंगी। तो के डैश की वैल्यू अगर निकालनी है इस रिएक्शन के लिए, इसको हमने के डैश लिया है, ये रिएक्शन इस जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी इसकी कंप्लीट रिवर्स रिएक्शन है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है HI की। इस केस में अगर के लेट कर रहे हैं तो इस केस में के डैश लेट करेंगे। तो के डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास के की वैल्यू है तो के डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको किसी रिएक्शन का रिवर्स कैलकुलेट करना है तो 1 अपॉन के डैश, वो 1 अपॉन के की वैल्यू आपको मालूम हो तो आप के डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप लोगों को इसके बारे में भी बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी, जैसे इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को अल्टर करते हैं, कैटलिस्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते, सेम उसी तरह से द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स के, ठीक है, इस के के ऊपर भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, बट इससे रिलेटेड कुछ एक्सटेंड होके मैं कुछ बातें आपको बता रही हूँ दैट ऑल्सो इंक्लूड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। सो इफ द इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2
देन अगर कोई भी इक्वेशन है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को लेट करते चलते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ आते चले जाएं। अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, और इसको आप डिवाइड बाय 2 करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करते हैं, सपोज कर दिया हमने डिवाइड बाय 2, तो आपको पता है यहाँ तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो k को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर और आपको पता है, चाहे मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, मैं 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ले रखी है कि अगर कोई आपके पास रिएक्शन, इफ यू हैव इक्विलिब्रियम रिएक्शन और आपने उस रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है, कर दिया इस रिएक्शन को डिवाइड बाय 2, फाइन। तो उस केस में आप k कैसे लिखोगे बच्चे? k लिखने का तरीका तो मैंने आपको बता रखा है, क्या है बेटा, प्रोडक्ट की वैल्यूज अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू, ओके। तो इस केस में आपके पास क्या था, इस केस में आपके पास क्या था, 2 था, ठीक है। आपने 1/2 से पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 था तो ये कैंसिल होके 1 बन गया है, तो HI हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, H2। इसकी पावर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2। I2 की पावर को भी आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2। तो अल्टीमेटली जो पूरी कंसंट्रेशन होगी, जो कंप्लीट कंसंट्रेशन जो है, वो आपको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लोग वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाफ, 1/2 से। किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन को हाफ से डिवाइड, वो 2 से डिवाइड करने के बाद पूरी इक्वेशन का आ जाता है हमारे पास। अगर मैं सपोज इस तरीके से भी लूं, इसकी पावर 2 थी कि मैं पूरी इक्वेशन को हाफ से ले रही हूँ, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी का हाफ ऑफ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पूरी वैल्यू को मैं कंसंट्रेशन मानकर x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो जो k होगा, k इज इक्वल टू होगा x1/, कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उस क्या लेना है, x1/2, ठीक है। इस तरीके से आप k की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए, इस तरीके से आप k की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यही बात करूं, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है और उसको मैंने मल्टीप्लाई क्या किया था, डिवाइड बाय 2, अब हम करते हैं उसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2। तो सपोज 7th कैरेक्टर लेके चलते हैं, H2 प्लस I2 है मेरे पास, और मेरे पास है 2HI, और पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास हो जाएगा 2HI 2I2, और ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 4HI, अप्रोक्स इतना ही हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, k क्या होगा बेटा, HI की पावर क्या हो जाएगी 4, H2 की पावर क्या हो जाएगी 2, और I2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी कंसंट्रेशन लेट करके x की पावर हमने क्या कर दी 2, ठीक है। तो हम k की वैल्यू निकालने के लिए जो भी हमें कंसंट्रेशन दी होगी, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज द 7th कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू k, हाउ वी विल कैलकुलेट द k। अगर किसी रिएक्शन में हाफ हुआ है तो आपको पता है आपने कंसंट्रेशन का क्या करना है, किसी इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है, तो जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको पावर में, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है पूरी इक्वेशन को, तो पावर में 2 ले जाना, कंसंट्रेशन की पावर 2 कर देना। अगर पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया हो तो पावर में 3 मल्टीप्लाई में 3 कर देना। वो आपने इक्वेशन को देखना है कि इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, क्या किया हुआ है। किसी भी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3 आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने k की वैल्यू को सॉल्व करते चले जाना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू द k, तो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो k से रिलेटेड है बेटा। दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज, एंड अगर कोई रिएक्शन है, सपोज यू हैव एनी रिएक्शन, इफ इक्वेशन इज रिटन इन 2 स्टेप, अगर कोई इक्वेशन 2 स्टेप में लिखी जा रही है, अगर एक रिएक्शन है उसको आप सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं, और उसी रिएक्शन को अगर आप 2 स्टेप में भी लिख सकते हैं, 2 स्टेप में लिखेंगे तो k की वैल्यू भी 2 होंगी। तो हाउ वी रिप्रेजेंट द k इन दैट केस, सो इफ द इक्वेशन इज रिटन इन 2 स्टेप, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है सपोज N2 प्लस 2O2, और आप उसे लिख सकते हैं N2 प्लस 2O2, और आप लिख सकते हैं 2NO, और इसके लिए बच्चों आप लोगों के पास जो k की वैल्यू है वो है NO2 की पावर 2 अपॉन N2 अपॉन O2 की पावर 2, ठीक है। ऑल आर इन गैसियस स्टेट, अगर सभी गैसियस स्टेट में होते हैं तो हम सारे के सारे सभी को कंसीडर करके चलते हैं बच्चों, तो हमने सभी के सभी कंसीडर किए हुए हैं, देख लीजिए, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन को मैं 2 स्टेप में लिखती हूँ, सपोज दिस रिएक्शन इज रिटन इन 2 स्टेप, जैसे N2 प्लस O2, शुरू में 2O2 की जगह में एक ही O2 ले लूं तो रिएक्शन बनेगी मेरे पास NO, ठीक है, क्या बनेगा NO। अगर मैंने इसके लिए K माना है, इसी का एक स्टेप को मान लेती हूं मैं K1, तो K1 क्या हुआ, K1 हुआ NO की पावर 2 अपॉन N2 और O2, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन के इसी इक्वेशन को मैं फर्दर एक स्टेप में और करके दिखाऊं, सपोज मैंने ले लिया 2NO, ये जो 2NO बना है इसमें दोबारा O2 ऐड कर दूं तो बच्चे मेरे पास बन जाएगा NO2,
क्या बन जाएगा मेरे पास 2NO2, ठीक है। इन दिस दैट केस K क्या होगा, K होगा NO2 की पावर 2 अपॉन NO की पावर 2 O2 की पावर O2 खाली O2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर इसको K2 ले लेते हैं तो देखिए बच्चों, ये एक इक्वेशन थी मेरे पास, सिंपल इक्वेशन, इसका मैंने K लिखा, प्रोडक्ट की वैल्यू जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में चले गए, प्रोडक्ट की वैल्यू अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन को मैं 2 स्टेप में लिख दूं, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लगातार मैंने 2 मोल O2 के यूज किए हुए हैं, तो मैं 1 मोल O2 का यूज करूं, N2 प्लस O2 फॉर्म 2NO, तो K1 कैसे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस केस में देखूं, हमारे पास क्या है, इस केस में क्या देखा, N2 प्लस O2 फॉर्म 2NO, K1 की वैल्यू लिखी। अगर मैं इस केस में देखूं इसी तरीके से, तो NO प्लस O2 NO, ये वाला जो NO है प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट को मैंने रिएक्टेंट बना दिया, और एक O2 यहाँ लिया था, एक O2 यहाँ ले लिया, प्लस 2NO, K2 की वैल्यू लिख दी। अब इन जो ये वाला K है वो इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल है, तो मेरे पास जो K था, मेरे पास K1 इंटू मैं K2 करूं तो दैट इज इक्वल टू K। अब आपको पता है K की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, तो K1 की वैल्यू क्या है बच्चे, NO की पावर 2 अपॉन N2 और O2 इंटू में N2, इसकी K2 की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो मेरे पास आ जाती है NO2 की पावर 2 अपॉन NO की पावर 2 अपॉन O2, ठीक है। तो NO2 से NO2 कट रहा है, ठीक है, और मेरे पास और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है घूम फिर के वो क्या आ रही है, मेरे पास इसके इक्वल आ रही है बिल्कुल वैल्यू, NO2 की पावर 2, ये रहा NO2 की पावर 2 अपॉन में क्या बचता है N2, ये रहा N2 बेटा, N2 O2 तो पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाता है K। तो दो अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या वही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है, तो उनका जो मल्टीपल होगा, जैसे K1 K2 K3 जो भी होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल K, वो ओरिजिनल K के इक्वल होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी कुछ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड थी। नाउ इतना आप लोगों को मालूम हो, उसके बाद नाउ स्टूडेंट हम कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसके अंदर डिफरेंट फेजेस होंगे, ठीक है। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म की हैं, अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे, 2-3 एग्जांपल कैरी करते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के फेजेस इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब वो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। तो उसका के कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये मैंने आपको बताना है, तो आप देखिएगा। सपोज मेरे पास कुछ रिएक्शंस हैं बच्चों, देखिए सपोज मेरे पास कुछ रिएक्शन है, जैसे मैंने लिया अभी एग्जाम्पल भी लिया था CaCO3 solid, when we heat up and then form the CaO that is also in solid plus CO2 that is present in a gaseous state, and now we will write the K for this. The K आप सोचेंगे कि K को लिखने का तरीका यही होगा, ये सॉलिड में है और ये हमारा गैसियस स्टेट में है, and CaCO3 that is also present in a solid state. Okay, but by convention of concentration of all the pure solid and pure liquid, अगर कोई प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है, एक्वस की बात नहीं कर रही हूं मैं, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का हमारे पास मटेरियल है इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो आप दैट मस्ट बी टेकन एज यूनिटी, आपने उसे यूनिटी कंसीडर करना है एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सॉलिड इक्वल टू 1 एंड लिक्विड इक्वल टू 1 इन ए प्योर स्टेट इन द रिएक्शन। तो ये एक्वस नहीं था, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, तो आप इसे यूनिटी कंसीडर करेंगे, तो दैट विल बी कंसीडर 1 and 1। सो एक्चुअल K फॉर दिस रिएक्शन इज दिस इज। तो आप याद रखिए, कई बार कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे उसके लिए K की वैल्यू लिखनी आ जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए जहां पर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की बात होगी दैट कंसंट्रेशन यू मस्ट टेक इन ए यूनिटी फॉर्म, ठीक है। और K लिखने का तरीका आपने देख लिया, सिर्फ ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या बचा, K किसके इक्वल बचा, K बचा SO2 इन ए गैसियस स्टेट के इक्वल। इस तरीके से बच्चों बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं कि हाउ टू राइट द K एक्चुअली। K ऑल्सो राइट इन द, आप K को ऐसे लिखेंगे, आपको सबसे पहले फेजेस भी चेक करने होंगे, तब आप K को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो हमारी अगली क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ आज सी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम टाइप ऑफ द equilibrium, chemical equilibrium हो जो homogeneous and heterogeneous. So in the next class we will discuss about the topic that is related to the application of equilibrium constant. So आज के लिए इतना ही. Do your work in a neat and clean way and regularly.